force and laws of motion. Force and laws of motion. চ্যাপ্টার লস যে আছে না, লস অফ মোশন গুলো কি জানো? হলো ভাই, নিউটনস লস অফ মোশন নাম শুনে? হোয়াট ইজ ফোর্স? ফোর্স প্রেশার, প্রেশার না, প্রেশার ইজ ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। ঠিক আছে, প্রেশার মিনস ফোর্স বাই এরিয়া। এই যে এটা যদি একটা এরিয়া, এরিয়া, এটাতে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, ঠিক আছে, ফোর্স অ্যাপ্লাই করো যদি, সাপোজ দিস ইজ 2 নিউটন ফোর্স, এরিয়া 2 meter square, force per unit area, so 2 by 2 1 newton per meter square equal to 1 pascal. This is question. Any push or pull, any push or pull on an object, समझ में आया? पुश क्या? पुश जैसे इसको अगर पुश किया फोर्स है, अगर पुल किया तो भी वो भी फोर्स है, लिख लो। एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड force. Any push or pull on an object is called force. Unit की force er unit, SI unit of force, SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. ঠিক আছে, SI unit of force is Newton, আর আরেকটা ইউনিট আছে সিজিএস ইউনিট, এটা লাগে না, বল লিখে রাখো ডাইন। ঠিক আছে, সিজিএস ইউনিট মানে সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড। ঠিক আছে, যে এটা দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট, এসআই ইউনিট। এসআই ইউনিট সব জায়গায় ইউজ হয়, এসআই ইউনিট সব জায়গায় ইউজ হয়, সিজিএস ইউনিট সবসময় ইউজ হয় না। তো যখন নিউমারিক্যালস থাকবে, নিউমারিক্যালস এর মধ্যে তোমরা এসআই ইউনিটে কনভার্ট করবে যদি কোনো কিছু কিলোমিটারে থাকে। তো এসআই ইউনিটে কি কি থাকে? এসআই মিনস এমকেএস, মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড। ঠিক আছে, এসআই মানে এমকেএস সিস্টেম অফ ইউনিটস, মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড। যদি নিউমারিক্যালস করার সময় কোনো কিছু মিনিটে থাকে, কনভার্ট করতে লাগবে ইন সেকেন্ডস। যদি কেজিতে থাকে না, গ্রামে থাকে, একটু কনভার্ট কিন্তু কেজি কিলোগ্রাম। আর যদি মিটারে না থাকে, সেন্টিমিটারে থাকে, কিলোমিটারে থাকে, হেক্টোমিটারে থাকে, একটু কনভার্ট কিন্তু বেশি, তারপরে করবে। ঠিক আছে, আর যদি কনভার্ট করো না, রং হবে। তো SI unit of force is Newton.
1 Newton equal to 1 kg meter per second square. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. আর এটা যদি হয় ডাইন তাহলে না ডাইটাই করব 1 gram centimeter per second square. Serious. 1 gram centimeter per second square. Yes. One Newton is equal to 10 to the power 5 times. One Newton is equal to 10 to the power 5 times. যদি convert করো kg কে যদি গ্রামে convert করো 1 kg is equal to how many grams? 1000 grams. আর meter 1 meter equal to কত centimeter? 100. 1000 or 100 কটা জিরো? 1000 এর তিনটা জিরো, 100 এর দুইটা জিরো, পাঁচটা জিরো, 10 to the power 5 times. ठीक है? 10 to the power 5 times. So ये होगा force, any push or pull on an object is called force. SI unit is Newton. CGS unit जनरली जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, भी पता होना चाहिए. कभी कभी अगर पूछ देता है लोग क्या आ सकता है ये सब में मल्टीपल चॉइस है सीजीएस में. पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. अभी फोर्स कितने टाइप्स का है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस. What are the types of forces? Balance, unbalance, all of these. Contact force, non-contact force. Types of forces. Contact force. Non-contact force. Contact or non-contact. Contact और non-contact এর মধ্যে difference কি? What is the difference between contact and non-contact? Touch করা. Non-contact মানে without touching. Magnetic force. So touching তো এটা তো জানোই সব ফোর্সের মধ্যে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম ফোর্সের মধ্যে টাচ করতে লাগবে, কন্ট্যাক্ট ছাড়া হবে না, ঠিক আছে না? তো কন্ট্যাক্ট ফোর্সের একটা এক্সাম্পল ধরো মাসকুলার ফোর্স, ঠিক আছে, এটা তো ঠিক আছে, যে কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবে, পুশিং এন অবজেক্ট, পুলিং এন অবজেক্ট, ঠিক আছে না? মেকানিক্যাল তো মানে যেরকম গাড়ি অ্যাপ্লাইং ব্রেকস এগুলো সব কন্ট্যাক্ট ফোর্স. আর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স একটা বলে ম্যাগনেটিক, আর আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক. গ্র্যাভিটেশনাল. ঠিক আছে. मैग्नेटिक पता है मैग्नेट कैसा फोर्स होता है मैग्नेट में? आयरन कोर मैग्नेट में
दो मैग्नेट है तो नहीं पता, नहीं देखा कभी, कभी मैग्नेट से खेला नहीं कभी। मैग्नेट अगर ऑपोजिट पोल्स होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तब अट्रैक्ट करता है। अगर ऑपोजिट पोल्स नहीं है, दोनों सेम पोल्स है, तब रिपेल करता है। ऐसे है ना, एक मैग्नेट अगर ऐसा है, ये भाग जाएगा, भागेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होता है। दो मैग्नेट को लाके या फिर एक ही मैग्नेट को दो पीस कर देना, उसके बाद करके देखना। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, टीन, निकल, सबको अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेट। दिस इज काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फोर्स से क्रिएट होता है, अट्रैक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स माने ग्रेविटी, आर्थ अट्रैक्ट करे, आर्थ अट्रैक्ट करे, तो आर्थ तो একটা বল, তো হুইচ বল, ঠিক আছে, সার্কেল না কিন্তু স্ফিয়ার বল। বলের মধ্যে আমরা কোন জায়গায় আছি, সব জায়গায় আছি, উপরে নিচে সাইডে সাইডে। যদি বাইরের থেকে যদি দেখতে যাও, তাহলে এখানেও মানুষ আছে, নিচেও আছে, সাইডেও আছে, উপরে না নিচে, ঠিক আছে, বুঝলে কিরকম? নট সার্কেল, বল, ফুটবল। ফুটবলের মধ্যে যদি একটা পিঁপড়া যদি থাকে, সব দিকে রাখতে পারবো না, তো দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। আর্থ গ্র্যাভিটি তো কন্ট্যাক্ট ফোর্স, নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স। আর ফোর্সের ডেফিনিশন, এনি পুশ অর পুল অন অ্যান অবজেক্ট। ইউনিট Newton. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. 1 kg meter per second square. Next. Payal. বাইরে ট্রেন না। Hi, Adrian. একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ আমি আসছি একটু। তো কতটুক ছিল? কন্ট্যাক্ট ফোর্স, নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স, তারপরে ব্যালেন্স ফোর্স, আনব্যালেন্স ফোর্স। এটা কিন্তু টাইপস অফ ফোর্স না। ব্যালেন্স ফোর্স এন্ড আনব্যালেন্স ফোর্স আর নট টাইপস অফ ফোর্সেস। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, टेबल है, टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इधर से एक फोर्स दिया, इधर से भी फोर्स दिया, इधर से फोर्स दिया, इधर से फोर्स दिया। ये अगर दोनों फोर्स सेम 5 न्यूटन,
ये किस तरफ मूव करेगा? जगह पे रहेगा ना, वो मूव नहीं करेगा क्योंकि रिजल्टेंट जो है उसका रिजल्टेंट नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। फोर्स फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स मतलब इसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 5 तो अगर नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है, इन ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ, ये तो देखो ये इजी, ये मतलब ये जो ड्राइंग है ये सिंपल ड्राइंग है, एक सिंपल ड्राइंग है। ऐसा नहीं हो के ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, इसमें चारों तरफ से फोर्स इसमें लगे हुए हैं। ऐसे इतना सारा फोर्स लगने के बाद इसका सबका वैल्यू है, जैसे 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, ऐसे करके सब फोर्स मतलब उसमें अप्लाई हो जाने के बाद अगर नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स अगर 0 होता है, देन द फोर्स देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो ये सीधा नहीं होके ऐसा भी हो सकता है, এটা অন্য সিস্টেমে করতে লাগে, ঠিক আছে, এগুলো তোমাদের নেই। তো बैलेंस फोर्स लिखा আছে, बैलेंस फोर्स की বইয়ের মধ্যে डेफिनेशन क्या है लिखा हुआ? एग्जांपल दो ना, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन तो আছে তোমাদের आंसर से পাবে, डेफिनेशन থাকবে what are balance force and what are unbalanced force, ঠিক আছে। হ্যাঁ, an object continues to be in the state of rest of uniform, আর যদি নেট ফোর্স যদি 0 হয় না, अच्छा एग्जाम में যদি আসে এটাই আসবে, ठीक है। एग्जाम में इसी को ड्रॉ करना है, 5 न्यूटन दे देना, हो जाएगा। और अगर अभी अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस ना 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 वाटर बैलेंस फोर्स एंड वाटर अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखार পরে এটা আসবে করে, हाँ एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन लिखने के बाद अगर 2 मार्क का ही रहता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो लिखने के बाद छोटा करके ड्रॉ कर देना, इधर बैलेंस फोर्स का फिगर है, ये ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं भी बोलने से ड्रॉ करना पड़ता है, हाथ से ड्रॉ कर देना, स्केल में नहीं लिखनी है। ये है बैलेंस फोर्स, उसके बाद अनबैलेंस, अनबैलेंस अगर फोर्स अनबैलेंस है मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर ऐसा है एक साइड से ज्यादा फोर्स 10 न्यूटन, दूसरे साइड से 5 न्यूटन, then the resultant will be this, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोशन करবে না, মোশন মুভ করবে, মুভ করবে, যেরকম তোমাদের বইয়ে একটা পিকচার দিয়েছে, দেখো বইয়ে দিয়েছে না, ওই যে এ বি সি ধাক্কা দিচ্ছে ব্লক, যদি ইয়ে হয় ব্যালেন্সড, সরি কি বলে আনব্যালেন্সড হয়, তাহলে তো একদিকে ফোর্স বেশি থাকবে, আর বেশি থাকলে when the resultant is not 0,
ये जरूरी नहीं है कि फोर्स देने से हर चीज मूव करेगा, नहीं भी कर सकता, ठीक है ना, नहीं भी कर सकता है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि ये मूव करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा हैवी है तो मूव नहीं करेगा, फिर भी ये फोर्स अनबैलेंस्ड है, बिकॉज द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ঠিক আছে, এটা নেট ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে। এখন নেট ফোর্স যদি জিরো না হয়, তুমি 5 নিউটন ফোর্স দিয়ে তো ট্রাককে মুভ করাতে পারবে না, ঠিক আছে না, কিন্তু ফোর্স আছে, ফোর্স ইজ আনব্যালেন্সড, ঠিক আছে। भैया नेक्स्ट इज इनर्शिया। इनर्शिया पता है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया मीन्स, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, रेस्ट, ठीक है, मूव नहीं कर रहा है ना, ये मूव कब करेगा? फोर्स, अगर फोर्स अप्लाई होगा तभी जाके मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, मोशन का भी ऐसा ही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर ये बॉल है, ये रोल कर रहा है ऐसे, एक स्मूथ एक मतलब सरफेस पे, अगर कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो ये मूव करता रहेगा। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया। इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? लेकिन हम लोग अगर एक बॉल को थ्रो करते हैं तो थोड़ा देर बाद रुक जाता है, क्यों रुक जाता है? इसमें बहुत सारा फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, बहुत कुछ रहता है, पता है, उसके वो तो दिखाई नहीं देता है, इसके वजह से ये रुक जाता है। अगर फोर्स नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं होता, तो ये रुकेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया, inertia is the tendency of an object to remain in the state of rest or uniform motion. Inertia of an object is the tendency to remain in the state of rest or in uniform motion. ठीक है। अभी क्या क्या हो गया, जो एक्सप्लेन किया, फोर्स, types of force, balanced force, unbalanced force, inertia. Inertia is the tendency, ठीक है सर। Upon Newton's first law, what is Newton's first law of motion?
इसमें डेफिनेशन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है। बॉडी एट रेस्ट remains at rest. Body at rest remains at rest. And the body in motion continues to be in uniform motion. A body object भी हो सकता है. At rest remains at rest, and a body in motion continues to be in uniform motion until an external force is applied. Until an external force is applied. जो मैं पहले बताया था इनर्शिया का टाइम में, इनर्शिया समझाने के समय बोला था ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इट विल कंटिन्यू टू मूव, अगर रेस्ट पे है इट विल बी रेस्ट जब तक फोर्स नहीं है मिलेगा। तो ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, इसमें इससे हम लोगों को इनर्शिया का डेफिनेशन मिल गया, ठीक है, मतलब इनर्शिया से ही ये रिलेटेड है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. ये क्वेश्चन आता है, why Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. ठीक है, Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. ये हो गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ समझ में आया? उसके बाद सेकंड लॉ, अरे एक चीज बताओ, लिख लो, लिखने के बाद किसी भी चीज में फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस दैट फोर्स कैन मेक? Shape side, it can change the shape. It can change the shape of the object. Motion. It can change the velocity. It can change the direction. Direction. মনে করো একটা ক্রিকেট বল যদি আসে, ব্যাটসম্যান হিট করার পরে কি চেঞ্জ হয়? ডাইরেকশন আর স্পিড চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে না? তারপরে শেপ চেঞ্জ হওয়ারও এক্সাম্পল আছে। শেপ চেঞ্জ হওয়ার কি এক্সাম্পল আছে? ডো বলে, ডো, আটা শেপ চেঞ্জ होता है ना, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन शेप। ये सब ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, ये सब क्लास 8 में नहीं है। हाँ, मोशन नहीं, फोर्स अभी जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये सब था क्लास 8 में, थोड़ा था। ये सब का कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब कुछ था।
force can change the shape of an object. Lamentation or no? Lamentation. Okay, hold on. Change the direction of motion of an object. Change the shape of an object, change the direction of motion of an object. Change the speed of an object. ये सब चीजों को ये चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजों को ये चेंज कर सकते हैं फोर्स, ठीक है, ये लिख लो। तो ये हो गया ना, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction, inertia of rest, inertia of motion, inertia of डायरेक्शन, तीन टाइप का इनर्शिया है। तो पहले सबसे पहले जो इनर्शिया था, इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था? What is- Inertia is the tendency of an object to remain in the state of rest or uniform motion. हाँ, उसमें डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी में भी वो मतलब रहने का कोशिश करता है। दिस इज द टेंडेंसी। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे सकते हो? इनर्शिया, इनर्शिया का एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ रोज होता है, रोज होता है हमारा लाइफ में, मतलब इनर्शिया का एग्जाम्पल होता है।
जैसे गाड़ी, कार कार या बस, ब्रेक्स, अगर ब्रेक्स अप्लाई कर दिया बहुत फास्ट, तब क्या होता है? पैसेंजर्स को क्या होता है? अगर गाड़ी स्पीड में चल रहा है 80 किलोमीटर स्पीड में, अगर अचानक से ब्रेक मार दिया, तब पैसेंजर्स गिरते हैं ना आगे, नहीं गिरते? आगे जाके गिरेगा ना। 80 किलोमीटर से अगर ब्रेक मार दिया तो गिरेगा। तो क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया। उसका कुछ मूव कर रहा था ना, उसका बॉडी मूव कर रहा था, इसका बॉडी मोशन में था, अचानक से ब्रेक्स मार दिया, तो इसका जो बॉडी का जो टेंडेंसी है, मूव करने का टेंडेंसी, ये मूव करने का टेंडेंसी था, तो उस टेंडेंसी के वजह से आगे चला जाता है। समझ में आया? ड्यू टू दिस इनर्शिया। ये एक एग्जांपल है। इसके बाद अगर सपोज इट गाड़ी का ही है, ये गाड़ी इधर है, कार या फिर बस, सब बैठा है, अचानक से स्टार्ट कर दिया। अगर कोई खड़ा है, जो बैठा है उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई खड़ा है वो गिर सकता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है ना। गिर सकता है, तो क्यों गिर सकता है? इसका ये क्या में था, ये कौन सा स्टेट में था? ये आदमी रेस्ट में था, तो इसका टेंडेंसी है रेस्ट में ही रहने का, ठीक है ना। तो इसीलिए वो रेस्ट में रहने का कोशिश करता है और पीछे गिर जाता है। इसीलिए जो मूविंग कार या मूविंग कार नहीं, मूविंग व्हीकल, मूविंग बस से जंप नहीं करना चाहिए। अगर जंप कोई करता भी है तो उसका टेक्निकल अलग है, उसको दौड़ना पड़ता है। बस के साथ उसको देखना, ऐसे हैंडीमैन है ना, वो सब करता है ऐसे, फिर उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद जब वो जमीन पे टच करता है उसके साथ वो भी दौड़ता है। देखना, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा डे टू डे लाइफ में होता है। कभी कभी बस से या फिर ट्रेन से, ट्रेन में गई हो ना, ट्रेन से कौन जंप मारता हाँ, तो वो जो ट्रेन में कंडक्टर कंडक्टर नहीं होता है, अरे वो होता है ना झालमुड़ी चना, वो लेके आता है। हाँ, तो वो देखना, रनिंग ट्रेन से चढ़ता भी है, उतरता भी है। जब उतरता है तब ऐसे दौड़ता है। नहीं, क्यों दौड़ता है? क्योंकि अगर नहीं दौड़ेगा तो वो गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो वो मोशन का टेंडेंसी को मेंटेन करता है। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद सपोज ये कार है या फिर बस है, कुछ भी है, इसके ऊपर जो अगर ऑब्जेक्ट है, देखा होगा, बैग बुक ये सब लगेज, उसको बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? तो क्यों गिरेगा, ये क्यों गिर जाता है? ठीक रहता है अगर ब्रेक मारता तो सब यहाँ पे कौन सा इनर्शिया का टाइप से था? यहाँ पे देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ये बस ऐसे टर्न करेगा, इसका टेंडेंसी है सीधा चलने का, सीधा गिर जाएगा, सीधा गिरेगा, बस ऐसे चला जाएगा। तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इसीलिए उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। हाँ? इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया। ये सब इनर्शिया का एग्जांपल्स है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स है और भी है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आया तो लिखना पड़ेगा, नोट्स में मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा, सब नहीं मिलेगा। जो तो मैं डिस्कस किया ना अभी, ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा भी हो सकता है इस तरह का। तो क्या हो गया? इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड लॉ से पहले एक चीज बाकी है, वो पहले कर लो।
momentum. Momentum. Momentum of an object is the product of its mass and velocity. Momentum of an object is the product of its mass and velocity. ठीक है? Momentum माने m into v. মানে মোমেন্টাম যদি কোনো অবজেক্টের বেশি হয়, ফোর্সটা বেশি হবে, फोर्स बेशी हो गए। कैसे देखो, अगर एक बॉल क्या अगर हिट किया, एक रबर का बॉल या फिर प्लास्टिक का बॉल और एक हार्ड ड्यूस बॉल, ठीक है, दोनों सेम स्पीड में आए, सेम स्पीड में, कैच पकड़ने के बाद इसमें ज्यादा चोट लगेगा, ड्यूस बॉल में ज्यादा चोट लगेगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वो बता दूंगा मैं, अभी उसके बाद सेकंड लॉ के बाद पता चलेगा तो उसमें फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू तो मोमेंटम दोनों अभी क्या बोला था मैं, ड्यूस बॉल प्लास्टिक बॉल का मास, जो ड्यूस बॉल का मास है उससे कम है। ये ड्यूस बॉल है, ये प्लास्टिक बॉल है, इसका प्लास्टिक बॉल हल्का होता है। अगर वेलोसिटी सेम भी है, m इंटू वी करने के बाद इसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कम होगा। ये अगर सपोज 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है और ये है 100 या फिर 200 ग्राम, ये 5 ग्राम, ये 200 ग्राम। अगर वेलोसिटी सेम भी होता है तब भी ये मतलब हल्का लगेगा बिकॉज ऑफ लेस मोमेंट। ये अगर आके हिट करेगा तो चोट नहीं लगेगा। ये अगर प्लास्टिक अगर हिट करेगा तो चोट नहीं लगेगा क्योंकि इसका मोमेंटम कम है। समझ में आया? इसी तरह मतलब मोमेंटम बढ़ाने के लिए या तो मास को बढ़ाना होगा, नहीं तो स्पीड को बढ़ाना होगा। स्पीड ज्यादा होने से भी मोमेंटम हो सकता है, मास ज्यादा होने से भी मोमेंटम हो सकता है। जैसे ट्रक है, ट्रक अगर ज्यादा स्पीड में नहीं है, स्लो है, तब भी उसका मोमेंटम ज्यादा है। वो अगर किसी छोटा कार को हिट करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है ना, कार का मोमेंटम कम है, उसका स्पीड ज्यादा भी होगा तो वही कटे गिरेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। देन बुलेट उसमें क्या होता है, बुलेट कितना बड़ा होता है, गोली है क्या? स्नाइपर है तुम्हारे पास? नहीं है ना, छोटा होता है बुलेट, इतना छोटा होता है तो इसका वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है, वेलोसिटी इसका इतना ज्यादा होता है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसीलिए नुकसान करता है। अगर स्पीड ज्यादा नहीं होता तो छोटा चीज से, इतना छोटा चीज से इससे मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अगर बुलेट है तो होगा। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। मोमेंटम का सिंबल है पी, सिंबल ऑफ मोमेंटम, इससे डिनोट किया जाता है। मोमेंटम एम से नहीं, इससे डिनोट किया जाता है। पी के पी इक्वल टू एम बी लिख लिया है था। मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
उसमें मोमेंटम आएगा। और मोमेंटम का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास का क्या यूनिट है? मास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड बस केजी मीटर पर सेकंड। अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है देन इट इज न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। देन मोमेंटम, मोमेंटम के बाद मास, पता है ना मास? मास क्या है? वेट, नॉट वेट, वेट। Mass is 5 kg. 5 kg is the mass. 5 into 9.8. 9.8 meter per second square. Acceleration due to gravity. Upon it, weight. Weight is a force. ग्रेविटेशन का चैप्टर में बाद में आएगा। ठीक है, अभी इतना नहीं है। अभी जैसे जब बोला मास, मास का डेफिनेशन, mass of an object is the measure of its inertia. Mass of an object is the definition है, mass of an object is the measure of its inertia. इसका मतलब क्या है? Mass of an object is the measure of its inertia. कभी कभी ये भी डेफिनेशन होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ये लिखने से ही होगा। ठीक है, इनर्शिया मतलब मास is directly proportional to inertia. Proportional makes sense. Sign proportional बुझो ना, varies plus ठीक है करो नहीं, inverse variation, direct variation हैं, ये सिंबलটা তো পাবে মানে এটা যদি বাড়ে এটাও বাড়বে। ঠিক আছে, ইনভার্স ভেরিয়েশন মানে একটা বাড়লে আরেকটা কমে। ডাইরেক্ট ভেরিয়েশন, ডাইরেক্ট মানে একটা যদি বাড়ে আরেকটা বাড়বে। তাহলে মাস যদি কারো বেশি হয় তো কি হবে? ইনার্শিয়া বেশি হবে। একটা যদি মোটা মানুষ থাকে এটাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে টাইম লাগবে, মানে কষ্ট হবে। পাতলা মানুষ যদি হয় জলদি হবে, একটা দিলে হয়ে যাবে। লাইক দ্যাট মাস and inertia are directly related. समझ में आया? अभी ऑब्जेक्ट को हिलाने में प्रॉब्लम होता है। हिलाने में क्या मतलब? कहीं से भी हिलाने में, जैसे अगर मूव कर रहा है तब भी, ठीक है, अगर एक ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है,
स्लोली मूव कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसको हिट करके हिला सकते हो? नहीं हिला सकते। लेकिन अगर एक छोटा सा बॉल मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, उसको हम लोग हिला सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज ऑफ दिस। इसके बाद है सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ, द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force. The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force. And takes place in the direction of the force. And takes place in the direction of the force. Rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction of the force. Equation मालूम है, F equal to ma. F equal to ma. Force equal to mass into acceleration. स्कूल है क्या ये चैप्टर? हुआ तो F equal to ma बोले नहीं? F equal to ma तो बोलते ही लग गए, तो माने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तक के डिराइव, ठीक है? क्वेश्चन আছে মানে what is second law of motion, Newton's second law of motion, and derive the equation F equal to ma. देखो पेज नंबर 119, F equal to ma है उधर, कहाँ से आया? इसी सेकंड लॉ से आया। तो कैसे आया? तो लाना पड़ता है, मतलब डिराइव करने का क्वेश्चन है, ठीक है? ये डिराइव करना सीख लो, तुम्हारा नोट्स में भी मिलेगा। अभी मैं शॉर्टकट में करा देता हूँ। That F equal to force, m is the mass, initial velocity u, v final velocity, and t is time, और एक चीज है a, acceleration,
is acceleration. A is acceleration. ठीक है, force, mass, initial velocity, final velocity, time and acceleration. Hiroshi, Sir, লিখছো তুমি? লিখে আমাকে পাঠাবে। yes, sir. ঠিক আছে। So force is force, mass, initial velocity, final velocity, time, acceleration. ये सारा F equal to ma करने में ये सब का जरूरत पड़ेगा, ये सारे सिंबल्स। तो हो गया, लिख लिया ना। अभी ये बताओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन। The rate of change of momentum in the direction of रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम माने कि मोमेंटम m into v, ঠিক আছে না? এখন ভেলোসিটি কয় রকমের আছে? দুই রকমের আছে না, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ফাইনাল ভেলোসিটি। তাহলে মোমেন্টামও দুই রকমের হবে, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, ফাইনাল মোমেন্টাম, বিকজ অফ দ্য ভেলোসিটি। তো এখানে আমি তো এটা জেনারেল বলেছিলাম mv, এখন ইনিশিয়াল ফাইনাল যদি হয়, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইজ mu, ফাইনাল মোমেন্টাম ইজ mv, ঠিক আছে? তো therefore initial momentum final momentum, initial momentum is mu, final momentum is mv, ঠিক আছে? কিছু না, খালি সিম্বলস গুলো লিখবে, সিম্বলস গুলো লিখে মোমেন্টাম লিখবে। মোমেন্টাম তো জানো, মাস এন্ড ভেলোসিটি, mu mv, বাস এতটুকু লিখবে। এগুলো লিখতে কোনো শিখতে লাগে না, এগুলো লিখবে, সিম্বলস গুলো লিখবে, মোমেন্টাম লিখবে, বাস। তারপরে তোমার নিউটন সেকেন্ড লতে দেখো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম। তো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম যেরকম অ্যাক্সেলারেশন, রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি a is equal to v minus u by t, চ্যাপ্টার 8 এ ছিল। এখানে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম equal to p2 minus p1 change in momentum, that means final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum, mv minus mu equal to m into v minus u, m into v minus u. So this is the change in momentum. Rate মানে কি? Rate, কোনো কিছুতে যদি রেট লেখা থাকে, then what does it mean? হ্যাঁ, different price. ওই রেটটা এখানে তোমার যেরকম ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশন, এগুলোর মধ্যে যেরকম রেট যদি থাকে তাহলে ডিভাইডেড বাই টাইম, ঠিক আছে? যেরকম অ্যাক্সেলারেশনে ছিল a is equal to v minus u by t, মনে আছে? v minus u by t, রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি। এটা রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, কতটুকু ডিফারেন্স? এটা রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, এটা প্রায় টাইম হবে, রেট মানে টাইম হবে। তো এখানে রেট লিখি নাই এখন আমি, ঠিক আছে না? রেট নেক্সটটা তো লিখছি, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম equal to m into v minus u by t,
ঠিক আছে, rate of change of momentum is equal to m into v minus u by t. According to Newton's second law of motion, second law of motion এ কি লেখা আছে? The rate of change of momentum proportional to the applied magnetic force within space in the direction. Rate of change of momentum মানে এটা is proportional to the applied force. This F is proportional to this. ঠিক আছে, rate of change of momentum is proportional to the applied force. মানে এটা proportional force এর সাথে। ঠিক আছে, এটা force এর সাথে proportional. V minus u by t, m equal to v minus u by t. V minus u by t মানে কি? What is v minus u by t? Velocity minus final velocity minus initial velocity by time. হ্যাঁ, তো এটা কি ইকুয়েশন কি হবে? চ্যাপ্টার 8 এ ছিল এটা। Acceleration a is equal to v minus u by t. এখন লিখবে since acceleration a is equal to v minus u by t, therefore f is proportional to ma. v minus u by t equal to এত, তো এর জায়গাতে a বসাবে, f is proportional to ma. ঠিক আছে, So এটা জানতে হবে v minus u by t এর জায়গাতে এই যে m into পুরোটা a ma, f is proportional to ma. এটা কি সিম্বলটা কি? প্রপোর্শনাল। সিম্বলটা সরাতে গেলে কি করতে লাগে? প্রপোর্শনালকে যদি সরাতে তাহলে কনস্ট্যান্ট দিতে লাগে। equal to k into ma. K is a constant, কিছু ফুল ফর্ম নেই। K is the constant of proportionality. Where K is the constant of proportionality. ঠিক আছে, এতটুকু করার পরে if m equal to 1 kg, a equal to 1 meter per second square, f equal to 1 Newton, then এগুলা ফোর্স, মাস, অ্যাক্সেলারেশন তিনটাকে যদি 1 1 ধরা হয়, মানে if a force of 1 Newton acting on a mass of 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square. ঠিক আছে, the force of 1 Newton acting on a mass of 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square হতে পারে এটা। ঠিক আছে, then what happens? সবগুলো 1 হবে। 1 Newton is equal to k into 1 kg into 1 meter per second square. 1 Newton is equal to k into 1 Newton, kg meter per second square মানে 1 Newton. K is
is equal to 1. Therefore, F is equal to 1 into MA. F equal to MA. এটা ডেরাইভেশন আছে 3 মার্কস, ঠিক আছে? এটা আছে আর একটা আছে। समझ में आया? नहीं है? आया? कल पे जाके प्रैक्टिस करना इसको। फर्स्ट लो हो गया, सेकंड लो हो गया, अभी थर्ड लो। थर्ड लो के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ज्यादा नहीं है, तीनटा। तो फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से क्या आया, कौन सा इक्वेशन आया? F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। अभी उसके बाद है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से कोई इक्वेशन एक है वो यूज करना पड़ेगा, उसमें मोमेंटम हो है उसमें। Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. What is Newton's third law? Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. ठीक है? Every action has an equal and opposite reaction. तो ठीक है, इतना तक रहने देते हैं, बाकी का थोड़ा बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ये तो पढ़ना जाके करते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। थैंक यू।